Hello everyone, so today we are going to discuss our chapter number 1 of Geography, India Size and Location. So let's start the chapter. India is one of the ancient civilizations in the world. जो हमारा कंट्री है इंडिया वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. तो जो हमारा कंट्री है इंडिया वो क्या है मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस्ड कंट्री है. तो मतलब कि इन्होंने बहुत अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है पिछली 5 शताब्दियों में. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा है और एक छाप छोड़ देने वाली प्रोग्रेस करी है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. India has also contributed significantly in making of world's history. जो हमारा भारत देश है उसने दुनिया का इतिहास रचने में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है. So let's come to the next topic which is location. So let's start. India is a vast country. India एक विस्तृत बहुत फैला हुआ देश है lying entirely in the northern hemisphere. So this line is important that where our India lies in the northern hemisphere. So let's see in the map and just understand it. So you can see here this line divides the world into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. So you can see here our India lies in the northern hemisphere. Hope you understand it. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 north and 37 degree 6 north. So the latitudes of India are 8 degree 4 north and 37 degree 6 north. The longitudes are 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. So जो इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स दिए हैं. And the next is the Tropic of Cancer 23 degree 30 north divides the country into almost two equal parts. So let's come in the map. So the sentence is saying that the Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer कैसे पास होती है इंडिया से इस तरह से. तो ये क्या करती है हमारे इंडिया को नंबर 1 एंड नंबर 2 टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है. To southeast and southwest of the mainland lie Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Let's come into the map. So here the sentence is saying that Andaman and Nicobar Islands are here and Lakshadweep Islands are here in the Arabian Sea and in the Bay of Bengal respectively. फाइंड आउट द एक्सटेंस ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस. तो ये कह रहा है कि आपको एक एटलस लेनी है और उसमें से जितने भी आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं उनको फाइंड करना है. या दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. डू यू नो the southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during tsunami. So the southernmost point of India was Indira Point, which got submerged in 2004 at the tsunami period. Next topic is size. The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometers. जो इंडिया का एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. मतलब इतना हमारा एरिया इंडिया का फैला हुआ है. India's total area accounts about 2.4% of the total geographical area of the world. पूरे दुनिया में लेट्स सी इन द वर्ल्ड मैप. पूरी दुनिया में देखिए 2.4% जो एरिया है वो क्या है इंडिया ने घेरा हुआ है पूरे ये वर्ल्ड मैप का. ओके एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द फिगर
1.2, it is clear that India is the seventh largest country in the world. सो फिगर 1.2 से इन्हें हमें पता चलता है कि जो इंडिया है वो हमारे पूरे वर्ल्ड का सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है. ये क्वेश्चंस बहुत जगह आता है कि इंडिया कौन से रेंज पर है, इंडिया कौन से लेवल पर आता है एरिया वाइज. सो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. India has a land boundary about 15,200 kilometers. So जो इंडिया है, इंडिया की लैंड बाउंड्री क्या है? 15,200 किलोमीटर्स. मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा इंडिया की लैंड बाउंड्री है. अगर इतनी बड़ी है तो एरिया तो सोच ही लीजिए फिर. And the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर्स. अब इस लाइन का मतलब क्या है देखिए. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री अबाउट इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन्स. जो कोस्ट लाइन है मतलब कि जो हमारे इंडिया का निचला पार्ट है जो बिल्कुल सी से कवर है, और इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो इन सब को इंक्लूड करके जो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है वो है 7,516.6 किलोमीटर्स. India is bounded by young fold mountains in the northwest, north and northeast. So young fold mountains are called Himalayas. So Himalayas are called young fold mountains. So इंडिया को हिमालयाज ने नॉर्थ ईस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से पूरा कवर करा है हिमालयाज ने. South of about 22° north latitude, it begins taper and extends towards Indian Ocean, dividing the country into two seas, the Arabian Sea and on the west and Bay of Bengal on the east. So ये क्या बोल रहे हैं, जब जैसे ही धीरे धीरे हम नीचे से नॉर्थ से साउथ को जाते हैं तो लैटिट्यूड जो होता है वो फैलने लगता है और फिर धीरे धीरे करके दोबारा से वैसे पतला सा नैरो और उसमें आ जाता है. डिवाइडिंग कंट्री इनटू टू सीज, जो हमारी कंट्री इंडिया को दो सीज में डिवाइड करता है. सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस साइड इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस साइड इज अरेबियन सी, एंड इन द एट द southwards there is Indian Ocean. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. So जितने भी spices like इलायची, पेपर वगैरह वगैरह तो वो इंडिया से गए. और मुस्लिन होता है एक टाइप का क्लॉथ, वो बहुत अच्छा क्लॉथ होता है और उसमें बहुत सारी कारीगरी करके स्कार्फ्स वगैरह पहले की रानियाँ पहनती थी. एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब जो गुड्स, जितनी भी चीज़ें होती है जो सेलिंग के लिए रखी जाती है उनको कहते हैं मर्चेंडाइज. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर and the architectural styles of dome and minarets from Western Asia can be seen in the different parts of our country. So जो इंडिया ने क्या ग्रीक स्कल्पचर मतलब जो ग्रीक मूर्ति कला थी और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम क्या होता है, इस तरह से होता है जो महलों के ऊपर से ऐसे किलों के ऊपर से होता है ना डोम, ऐसे ताजमहल का भी कुछ इस टाइप से ऊपर से. तो ये चीज़ जो होती थी ये दिस वन, तो ये इसको कहते थे डोम. तो इसकी आर्किटेक्चर हमने वेस्ट एशिया से ली है. India's neighbors. Okay, so India occupies an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 7 union territories. तो सबसे पहले तो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. तो ये चीज़ मार्क कर लीजिएगा आप, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये चीज़ लागू हुई है. तो इंडिया हैज़ 29 states and 9 union territories. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. So इंडिया का जो ये पार्ट है इस साइड को नॉर्थ वेस्ट, इधर साइड से इधर साइड को
तो ये साइड से इंडिया अपनी बाउंड्रीज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है। और फिर उसके बाद अगला आता है चाइना। चाइना होता है, चाइना इज़ फ्रॉम दिस साइड एंड चाइना इज़, और यहाँ से इधर इतने साइड में चाइना, फिर यहाँ से नेपाल, और फिर चलते चलते भूटान एंड नॉर्थ साइड को है चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में। Who are southern neighbors across the sea consist of two islands countries, namely Sri Lanka and Maldives. तो ये नेक्स्ट पेज में वो बता देंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज do you know, before 1947 there were two types of states in India, provinces and the princely states. So जो provinces होती थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स हेल्ड करते थे उनको, और जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे उनको वहाँ के हेरिडिटी रूलर्स, मतलब जो वंशज होते थे वो रूल करते थे उसको। श्रीलंका एंड मालदीव्स। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Palak Satrayat and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of Lakshadweep Islands. India has a strong geographical and historical links with her neighbors. Look the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. तो आपको एक इंडिया की बहुत अच्छी जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं अपने नेबर्स के साथ, और आपको एक मैप लेना है, उसमें अपनी एटलस में देखना है कि इंडिया कैसे सारे जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उससे अलग दिखता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस।